A very good morning to all of you. Am I audible? Bhumika? Okay. Chali. So we were doing 8.4 exercise. Question number 4, fourth part was going on. So let us continue in fourth question, fourth part. This is 1 plus tan square A over 1 plus cot square A. Otherwise, I have told you, whenever you see some trigonometric function like tan, cot, secant, cosecant, you shift them in terms of sine and cos. Sine cos के term में आप उसको change कर दो. But one thing more you have to remember, sometimes in a question, such t ratios are involved which are reciprocal of each other. जो एक दूसरे की reciprocal है. So what to do in that case? We will shift one t ratio in terms of other. Let us convert tan square A as 1 over cot square A. I have written tan square A in the numerator as 1 over cot square A. This is the over sign. This is numerator. This is denominator. Let us solve numerator individually. आपको पता है मैंने LCM बोला, आपको LCM लेना होता है trigonometry में same way as we take in the fraction. 1 and cot square A का LCM cot square A. LCM जो है cot square A डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड होगा तो आंसर cot square A. Whatever answer you are getting, that is multiplied with numerator 1 into cot square A plus whatever LCM you are getting, that is divided by numerator, get cancelled. Whatever answer you are getting, that is multiplied with the numerator. Just we take the LCM as we used to take in the case of the constant. Constants के केस में जैसे हम LCM देते हैं, in the same way we are taking in the case of trigonometry. So this becomes 1 plus cot square A, मैंने इसको सीधा करके लिख दिया, cot square A को इधर कर दिया, over cot square A, denominator में 1 plus cot square A. This is over. This is numerator. This is denominator. And we know division, we don't know how to solve. We always change division into multiplication. So I'm writing 1 plus cot square A over cot square A. This division sign changes into multiplication. This 1 over 1 plus cot square A, 1 plus cot square A, it will get reciprocal 1 over 1 plus cot square A. हमें पता है कि division को जब हम multiply में change करते हैं, things get reciprocal. 1 plus cot square A becomes 1 over 1 plus cot square A. Right? This get cancelled. So we are having 1 over cot square A. Whenever you are solving trigonometric identities से related आप question जब solve करते हो, one thing you have to keep in mind that most of the time, one thing you have to keep in mind that in case of the numbers in case of answer, when you are going to finalize the answer जो है हमें उसको numerator में ही show करना होता है. It is in the denominator cot square A, right? So to convert into if we want this cot square A to be in the numerator, what we should do, we should take the reciprocal. What is the reciprocal of cot square A? That is tan square A, and this is the answer. यहाँ पे मत छोड़ना, कभी भी हम उसको न्यूमिनेटर में नहीं छोड़ते, डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, हम उसको न्यूमिनेटर में लेके आते हैं. उसके लिए आई रेसिप्रोकल दिस cot square A and I am writing it to be tan square A. Okay, चलिए. So let us start fifth question. Question number 5. Fifth question, first part. What we want to prove now, the things are we want to prove certain identities.
वी वांट टू प्रूव सर्टेन एक्सप्रेशन। अब हमें कुछ चीजें प्रूव करनी है। प्रूव करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, he says prove that cosecant theta minus cot theta its whole square, cosecant theta minus cot theta its whole square is equal to 1 minus cos theta over 1 plus cos. This we want to. अब आपको एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि क्या ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। सिमिलरली secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू यू कैन से 1, दैट आर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यहाँ पे भी तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रिलेशन कुछ दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इक्वल है, तो क्या ये भी आइडेंटिटीज है? इसको हम आइडेंटिटी नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, right? Why it is equation not an identity? Because it will be true for some of the angles. ये सब एंगल्स के लिए ट्रू नहीं है, ये कुछ एंगल्स के लिए ही ट्रू होगी, इसलिए हम इसको इक्वेशन बोलते हैं। We don't call it identity, इसको हम आइडेंटिटी नहीं, राइट? हाँ, इसको प्रूव करने के लिए हम आइडेंटिटीज का और जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के रूल सीखे हैं उनका यूज जरूर करेंगे। Earlier also I have told you, whenever the question is like you have to prove the left hand side to be equal to right hand side, we consider the one side. Let me consider the left hand side. Cosecant theta minus cot theta, which whole. Only way that I know to proceed in trigonometry is that if cosecant, cot, tan, secant are there and I don't know any identity to be applied in the question, I just shift the whole question in term of sine and cos. That I am doing 1 by sine theta, cosecant theta can be written as, and cos theta over sine theta, cot theta can be written. Okay. Now same way you take the LCM in the numbers. In the case of number 2 by 3, 5 by 3, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वही एलसीएम आ जाता है, we all know. और अगर डिनोमिनेटर सेम हो, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होता, ऐसे ही बच जाता है। किया हुआ आपने, जैसे अगर आपके पास 2 by 3 minus 5 by 3 हो तो एलसीएम इज 3, 2 minus, सेम वे, ठीक है? So this you are getting. Now it is square. Square of something. Square of 2 by 3 is square of 2 and square of 3. Similarly, square of numerator over denominator means we will write it to be numerator square separately and denominator square separately. To write in more, you can say simplified form, you can write it 1 minus cos theta square and sin theta whole square means sin square theta. ये हमने किया हुआ है कि sin square whole theta means sin square theta. This we know earlier. ठीक है, इसका हमें पता है कि दिस इज sin square. Now the thing is what we want to prove, the whole expression is in term of cos theta. हम राइट हैंड साइड पे पहुंचना चाहते हैं और हमारी जो राइट हैंड साइड है उसमें सब जगह आपको cos theta नजर आ रहा है. So I can see so many students are absent today. Roll number 1, Akhilesh is absent. Then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 is absent. Dilpreet, 9, 10 are there. 11, 12, 13, 14, 15, and then 16 is present. 17 if I see present. 17, 11, 17, 18 present. Then 19, 20, 20, 19 absent. 20 absent. 20 is present. Then 21 is present. 22 is absent. 23 is present. 24 is absent. 25 present. 26 absent. 27 absent. 28 present. 29 present. And then 30. 30 is I think Ruhani present. Then 31 present. 32, 33 absent. 34, 35, 36, 37. 8 minutes. 36 is present. Simmerpreet is there. 37 absent. 39 absent. 40 absent, 41 absent, 42, 43 is present. बहुत सारे बच्चे आज absent हैं. चलिए, तो अब अगर हम देखें, हम यहाँ इस एक्सप्रेशन तक पहुंचे, हमें अपना पूरा एक्सप्रेशन cos की टर्म में चाहिए. ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos दिख रहा है, बट इन द न्यूमरेटर वी सी sin, बट ऑन द अदर हैंड आई नीड cos. अब हमें यहाँ पे अपने दिमाग के तार कुछ जो है वो
घुमाने पड़ेंगे कि दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, आई वांट माय होल एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, so I have to think about some identity in which sin cos are sitting so that I can get the value of sin in terms of cos. What is that identity? You know, sin square theta plus cos square theta, this is equal to 1. We did it. So from here, getting sin square theta, this is equal to 1 minus cos square theta. This is my requirement that I have to turn this sign in terms of cos. So I am writing using this identity. जो भी आप use कर रहे हो उसको साइड पे लिखते जाओ. That 1 minus cos theta whole square over 1 minus cos square. Identity मैंने use कर. Okay. Now the thing is, what I want to prove, उसमें एक तो कहीं पे भी स्क्वायर नहीं है, सारी लीनियर टर्म्स है. हमारे पास ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है. कैसे इसको हम डील करेंगे? लेट अस, दिस इज 1 minus cos theta whole square. अब यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर तो फिर भी हमारे पास cos लीनियर में है, यहाँ पे cos हमें लीनियर चाहिए, cos की 2 पावर है, हमें चाहिए cos की 1 पावर. कोई ना कोई आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू इक्वेशंस को प्रूव करना इसीलिए बच्चों को मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का भी उतना ही यूज है. कैसे? आई कैन राइट इट एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिस इज डेंजरस है, ये भूलेगा, बिकॉज आई वांट cos टू बी लीनियर. लीनियर पावर में मुझे cos चाहिए, तो इसलिए मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दिया. तो व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? वी ऑल नो a square minus b square is a minus b and then a plus. ठीक होगी बात? आइडेंटिटी यूज हो गई. नाउ दिस इज 2 पावर, दिस इज 1 पावर. इस 1 पावर ने 2 पावर को कट कर दिया. ऊपर जो 1 minus cos theta 2 था वो एक ही रह गया. So we will be having 1 minus cos theta over 1 plus cos theta, and this was what? This was what we want to do, and this is equal to right hand side. Only thing as a student अगर मैं इस क्वेश्चन को करूंगी, I will get forget is that पहला तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने साइन कॉस में चेंज करना है. ठीक है, एलसीएम लेना भी मुझे आता है, एवरीथिंग आई नो. व्हेन आई कम हियर, कुछ बच्चों को ये भी भूलता है कि अब क्या करें, बट ये चीज फिर याद हो जाती है क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड में हमें कॉस ही कॉस नजर आ रहा है, तो मुझे पता है साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज करना पड़ेगा. ये भी याद रहेगा. साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कैसे चेंज करना है ये भी याद रहेगा आइडेंटिटी के थ्रू. यहाँ पे आने के बाद here starts the dangerous step. यहाँ से हम आगे कैसे करें. मैंने फिर आपको बताया कि राइट हैंड साइड ही आपको ईच एंड एवरी स्टेप पे गाइड करेगी. that you need cos to be linear. Here cos is having square part, तो I want some identity जो square part को single part में shift कर दे. that is a square minus b square. so I am writing it a square minus b square using a minus b, a plus b. 1 minus cos theta 1 power, 1 minus cos theta 2 power get cancelled, 1 power is left, and we are getting right hand side 1 minus cos theta over 1 plus cos theta. Is it okay? एक बार चेक कर लो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो you can ask. चलिए नेक्स्ट, सारे पार्ट्स हमें करने पड़ेंगे डिस्कस. हाँ जी राघव, यू कैन आस्क योर डाउट. मैम इसको हम आइडेंटिटी क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें हमने मैम थीटा की कोई वैल्यू लेकर नहीं सॉल्व किया ना. आइडेंटिटी इसको हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एक्सप्रेशन सारी थीटा की वैल्यूज के लिए इक्वल है. दिस वी आर नॉट श्योर. ठीक है ना, आप पुट करो डिफरेंट थीटास की वैल्यू, कुछ के लिए ये दोनों इक्वल होंगी, कुछ के लिए नहीं भी होंगी. there is a certain value of theta for which these two sides will be equal. There are not all the values of theta from 0 to 90 for which these two sides are equal. That's why it is called trigonometric equation, not trigonometric identity. Am I clear, Raghav? Yes ma'am. Chalo, let us start with the second part. Fifth question, second part. Second part is prove that cos A over 1 plus sin A, cos A over 1 plus sin A. थोड़ा सा बोर्ड मुझे सेट करना पड़ता है हर बार क्योंकि एक्चुअली मैंने अब बोर्ड लैपटॉप को ज्यादा नजदीक ले आई हूँ तो बोर्ड पूरा नजर नहीं आता. प्लस 1 plus sin A over cos A. This is the expression. We have to prove this is equal to 2 secant. इतनी बड़ी वैल्यू जो है, इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है उसको 2 secant A के इक्वल हमें
जो है वो प्रूव करना है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड लिटिल बिट यू कैन से डिफिकल्ट, लिटिल बिट यू कैन से थोड़ा सा बच्चों को सरप्राइज होता है कि कैसे इतना बड़ा एक्सप्रेशन एक छोटी सी वैल्यू में इक्वल आ जाएगा। सेम वे एज वी आर डूइंग अर्लियर, कंसीडरिंग दिस टू बी लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैंने कंसीडर किया लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को मैं मिटा देती हूँ, मुझे 2 सेकेंड ही चाहिए याद, दिस साइड 2 सेकेंड की। नाउ द थिंग इज, अगर तो क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें कोई सीकेंट है, टैन है, कॉट है, तो वी नो दैट दे कैन बी शिफ्ट एज रेसिप्रोकल, बिकॉज हमें सारे एक्सप्रेशन को साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व करना होता है। बट अगर एक्सप्रेशन पहले ही साइन कॉस में, फिर क्या करें? अगर तो ये सीकेंट टैन कोसेकेंट एक्सेट्रा में होता तो इट वुड हैव बीन चेंज इन साइन कॉस, बट इफ इट इज ऑलरेडी इन साइन कॉस, क्या करूं फिर मैं? और तो इसको साइन कॉस में ले जा नहीं सकती, पहले ही साइन कॉस है। जो बच्चा पहले ही अपना ठीक से पढ़ रहा है उसको थोड़ा मैं डांटी जाऊंगी, रेगुलर अपनी क्लासेस लगा रहा है, तो जो पहले ही ठीक है उसको क्या ठीक करना? उसके लिए सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि हम उसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है कि आपने ये आपको 2 फ्रैक्शन दी हुई है, आपने इनको सॉल्व करना है। हमें पता है हम कॉन्स्टेंट्स के केस में फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते थे, बाय टेकिंग द एलसीएम। सेम वे दिस इज द वन टर्म, यू कैन से वन फ्रैक्शन, दिस इज द अनदर टर्म, यू कैन से द अनदर फ्रैक्शन व्हिच आर टू बी सॉल्व्ड। 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना। अब देखो जब मैंने एलसीएम लेना है, दिस इज अ डेंजरस थिंग, एलसीएम नहीं बच्चों को लेना आता ट्रिग्नोमेट्री के केस में, ये दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आपको याद होगा टीचर्स आपको बताते थे कि अगर हमारे पास एलसीएम लेते वक्त नीचे 2 प्राइम नंबर्स हों तो आपको कभी भी एलसीएम को सेपरेटली निकालने की जरूरत नहीं होती, आप मल्टीप्लाई करो, यानी कि उनमें कुछ कॉमन ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो। अब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनके एलसीएम का क्या क्या रूल होगा? जस्ट देयर प्रोडक्ट विल बी देयर एलसीएम, 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस, दोनों की प्रोडक्ट एलसीएम में आ जाएगी। अगर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो दोनों का प्रोडक्ट जो है दैट विल बी एलसीएम, सेम वे एज वी डिड इन द कांस्टेंट। नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ एलसीएम? व्हाट इज एलसीएम? व्हाटएवर एलसीएम इज देयर डिवाइडेड विद द डिनोमिनेटर। मेरा ये एलसीएम है 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस ए, तो इसको मैं 1 प्लस साइन ए पहले डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करूं तो ये कट जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट विद मी? कॉस ए। व्हाटएवर आंसर आई एम गेटिंग दैट इज मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर, cos a into cos plus second term, this is my LCM, this is my LCM, I would like to divide my LCM with the numerator, 1 plus sin a, whatever answer is getting that is multiply with the numerator। ये पहले था और ये मेरा आंसर। ये स्टेप अच्छे से चेक कर लो, क्या एलसीएम लेने के बाद जो मैंने एलसीएम के रूल से फर्स्ट स्टेप लिखा है, इज इट ओके? एलसीएम लेना ही बच्चों को मुश्किल लगता है, मैं बार बार कहती हूं। दिस इज समथिंग which seems to be difficult, right? Now let us solve it. This becomes cos square a, cos a into cos a, cos square a, 1 plus sin a into 1 plus sin a, 1 plus sin a का होल स्क्वायर। वैसे तो बच्चे ब्रैकेट्स खोलना शुरू कर देते हैं, पर मेरा यही होता है ओपिनियन कि आप इसको आइडेंटिटी में चेंज करके खोलो, दैट विल बी बेटर। दिस इज 1 plus sin a into cos। Is it okay up to this? अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को खोलेंगे, यही फिर से वही प्रॉब्लम, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आ गई फिर से, कौन सी? a प्लस बी होल स्क्वायर, खोले इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से, दिस इज a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि sin a का स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस 2 into a into b, जस्ट सी इज इट ओके? नीचे मैं कोई ब्रैकेट नहीं खोलती, नीचे मैं इसको एज इट इज लिखती हूँ। I just have opened this by using a plus b whole square. Is it okay? LCM का रूल मल्टीप्लिकेशन, opening the bracket using a plus b whole square. Next step is now in the numerator आपको चीजों को अरेंज भी करना है। अरेंज देखो एक और नई चीज आ गई कि हमें टर्म्स को एक दूसरे के पास लाना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू आर यू कैन से रिमेम्बरेंस ऑफ आइडेंटिटीज। अगर आप ध्यान से इसके न्यूमरेटर को देखो तो कोई 2 ऐसी टर्म जिनको मैं लिंक कर दूं और जिनके थ्रू मेरे को कोई आइडेंटिटी पता चल रही हो, ऑल वी नो दैट cos square a and sin square a, cos square theta and sin square theta, they are related to each other, so I am writing them collectively.
दिस इज cos square a प्लस sin square a, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया, बाकी की चीजें लिखे, प्लस 1 प्लस 2 into 1 2 into sin a 2 sin, check it, just I am collecting the terms, देख लो एक बार। रीजन है क्योंकि मुझे cos square a प्लस sin square a के बारे में पता है, सबको पता है कि मुझे अकेली को पता है, we know, हम लोग कहते रहते हैं मैथ्स पढ़ते पढ़ते कि we know this, we know that, God knows that whether we know this or not. Do you know this that cos square a plus sin square a क्या होता है? Cos square theta plus sin square theta is equal to, according to identity भूमिका, I can see you speak up. Cos square theta plus sin square theta क्या होता है? Equal to what? Just give your gesture, I can understand. अपने gesture से समझा दो आप मुझे। Cos square theta plus sin square theta is equal to 1. आइडेंटिटी की हुई है आपने, जो भी आइडेंटिटी यूज करोगे साइड पे लिख दो, बिकॉज वी नो cos square theta plus sin square theta दिस इज इक्वल टू 1, सेम आई एम यूजिंग, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, दिस इज 1 दिस इज 2, राइट, सो इन द न्यूमरेटर 1 plus 1 2 2 sin। अगर आपको अलजेब्रा को ट्रिग्नोमेट्री में यूज करना आ गया तो सोच लो आपका आधी प्रॉब्लम सॉल्व। अब आगे इसको ऐसे कैसे करें, बच्चों के माइंड में फिर ये क्वेरी रहती है, अगर आपको अलजेब्रा आता है तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों टर्म्स में से अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लो, 2 कॉमन निकला, अंदर बचा 1 प्लस 2 बाहर चल गया, अंदर बचा साइन। अलजेब्रा कहता है if two terms having something which is common that can be taken out, same thing I am using। फिर अलजेब्रा क्या कहता है, कॉमन लेने के बाद अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ एक जैसी चीजें उनको कैंसिल कर दो, कैंसिल, क्या बचा, 2 over cos। एक चीज का ध्यान रखना, अपनी राइट हैंड साइड को कभी मत भूलना जो हमें गाइड करेगी, राइट हैंड साइड है 2 secant a, हमें यहाँ तक पहुंचना है। मोर ओवर एक चीज और मैंने आपको बताई कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में आंसर जो है इफ इट इज पॉसिबल आंसर को कभी न्यूमरेटर में मत डिनोमिनेटर में मत रहने, कैसे, आई नीड 2 इन माई राइट हैंड साइड, आई एम राइटिंग 2, 1 by cos a को सेपरेटली लिखो, 2 को अलग कर लिया बिकॉज आई नीड 2, 1 by cos a, and my right hand side says that I should have 2 secant a, and you know cos a किसका रेसिप्रोकल है, c वाला किसी बड़े वाले s का s वाले का रेसिप्रोकल होता है, मैंने हिंट दिया हुआ है, तो cos a किसका रेसिप्रोकल, s से बड़े वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन है, secant, so cos 1 over cos a can be written as secant a। Very interesting is this, if you do it by using proper way, in a proper way, trigonometric identity and the rules of algebra, if you know these two things then it's not difficult at all, and if you are not knowing one thing more, algebraic identity also, 3 things you have to be mastered to solve these kind of question, 1 trigonometric identities, another algebraic identities, third rule of algebra, and you can easily reach the right hand side from the left hand side, right? So let us start with the third part of the 5th question। हर क्वेश्चन की अपनी एक खासियत है, हर क्वेश्चन में एक रूल है, एक कैलकुलेशन है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड पार्ट, दिस इज tan theta over 1 minus cot theta plus cot theta over 1 minus tan theta. This is to be proved that this is equal to 1 plus secant theta into cosecant theta. This we want to do. So again I am considering the left hand side. This is my left hand. इसको right. ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, मैंने इसको कंसीडर किया। सबसे पहली बात, tan cot का आंसर अगर tan cot में नहीं है राइट हैंड साइड
then change the whole expression in terms of sine cos. How we can write tan theta? Sine theta over cos theta. How we can write cot theta? 1 minus cos theta over sine theta. Second term. How we can write cot theta? Cos theta over sine theta. And how we can write tan theta? Sine theta. Just see, nothing I did. I just have changed a whole expression in terms of sine cos. सारे एक्सप्रेशन को मैंने साइन कॉस में चेंज किया. अब जो दो टर्म्स है हमारे पास, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है. प्लस के साइन या माइनस के साइन के बाद मैथ्स में दूसरी टर्म शुरू हो जाती है भी, राइट. सो इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको डील करना है. न्यूमरेटर को सॉल्व नहीं किया जा सकता मोर, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग द एलसीएम. This is sin theta upon cos theta over 1 and sin theta का एलसीएम. जैसे कि मैं आपको बोलूं 1 और 2 का एलसीएम, तो वो होता है, इसका एलसीएम हो गया sin. ठीक है. नाउ क्या हमारा रूल होता है? एलसीएम इज डिवाइडेड विद डिनोमिनेटर. 1 के साथ sin थीटा डिवाइड हुआ, sin थीटा आ गया, मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर. sin थीटा के साथ डिवाइड, आंसर 1, जो आंसर आया मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर. Same way I am doing here. Taking cos theta as LCM, it will be 1 into cos theta minus 1 into sin theta. Just see, is the things clear up to this? Numerator I am using the rule of LCM. Denominator I am using the rule of LCM, and in numerator I am doing nothing. कुछ भी नहीं है, वैसे का वैसे ही. Is it okay up to this? Just check it out. चलिए next. This becomes sin theta over cos theta over sin theta minus cos theta over sin theta. Sin theta over cos theta, sin theta minus cos theta over sin theta, plus cos theta over sin theta over cos theta minus sin theta. ठीक है, यहां तक ओके. अब टर्म्स हैं, हमें पता है डिवीजन हमें सॉल्व नहीं करनी आती, मैं उसको मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी. साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये जो डिवीजन का साइन है हमारे पास ओवर का, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली चीज ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकल हो जाएगी. एज वी डू इन द केस ऑफ द नंबर्स, जैसे हम नंबर्स के केस में करते हैं वैसे ही. दिस डिवीजन साइन चेंजेस इनटू मल्टीप्लिकेशन, दिस गेट रेसिप्रोकल, दिस ओवर दिस. Earlier also we did it in algebra, we learn it. So same here, cos theta over sin theta, and this thing it get reciprocal. देखो ये स्टेप ध्यान से समझ आता है. अलजेब्रा का रूल लगाया मैंने और कुछ नहीं, जस्ट द रूल ऑफ अलजेब्रा आई एम इंट्रोड्यूसिंग. आई थिंक यहाँ पे cos थीटा था, यहाँ पे cos थीटा. देख लो, क्लियर है यहाँ तक. अब ऊपर वाली चीज ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा. ये ऐसे लिखो, हमें नहीं मल्टीप्लाई करना. cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा. इज इट ओके अप टू दिस? ध्यान से देखो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना. अगर नहीं पता चल रहा यू कैन आस्क, बट थिंग्स शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. Now again it comes to the step of LCM. But before taking LCM, keep one thing in mind. अगर आपके पास डिनोमिनेटर में काफी चीजें एक दूसरे के जैसी हो जाए, कॉमन हो जाए, तब आपका LCM लेना बड़ा आसान हो जाता है. यहाँ देखना, cos थीटा
इसमें नहीं है, बिल्कुल अलग है। इसमें साइन थीटा है, इसमें नहीं है, बिल्कुल अलग है। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी डिफरेंट है। बट हम कोशिश करके इन दोनों को सेम कर सकते हैं ताकि हमें एलसीएम लेते टाइम ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। कैसे? देख, साइन स्क्वायर थीटा over cos theta into sin theta minus cos theta. I am writing it as it is. अब यहां से मैं क्या करूंगी, इस एक्सप्रेशन में से I will take minus as कॉमन। मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिखा, तो sin थीटा आगे आ गया, cos थीटा पीछे चला। जब माइनस कॉमन लेते हैं अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, cos का साइन माइनस हो गया, sin का साइन प्लस हो गया। Why I am doing this step? This is additional step I am doing just to make the two things common in the numerator denominator so that my LCM becomes little easy. So the next step is sin square theta over cos theta into sin theta minus cos theta. अब ये साइन मैच कर लो, प्लस माइनस दिस बिकम्स माइनस cos square theta over sin theta into sin theta minus cos. Just see is it okay? यहाँ तक देख लो सारे अच्छे से। चीजें मुश्किल होती जा रही हैं, थोड़ा सा ध्यान से इसको अपने देखना है, बिल्कुल ध्यान से। इज इट ओके? ठीक है यहाँ तक? नहीं भूमिका नहीं समझ आया? नहीं, क्या नहीं समझ आया? जस्ट मैंने दोनों को सेम किया। यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा था, मैंने इसके जैसा बनाने के लिए साइन थीटा माइनस cos थीटा बनाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लिया, अगले स्टेप में प्लस माइनस माइनस हो गया। Nothing else I'm doing. I'm just making these two things to be same. ठीक है, चलिए। अब क्या होता है कि एलसीएम लेने से भी पहले अगर आपके पास कुछ, वैसे तो एलसीएम में सेम चीज आके बैठ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एलसीएम लेने से भी पहले अगर आप उन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन ले सको, दैट विल बी मोर बेटर। तो मैं ये जो दोनों एक जैसे बनाए हैं ना, इनको बाहर ले ली, साइन थीटा माइनस कॉस। पहली टर्म में रह गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा, और दूसरी टर्म में रह गया कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन। देख लो ध्यान से, एलसीएम भी ले सकते थे इसका, बट मैंने कॉमन लेना प्रेफर किया कि मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर ही ले जाऊं। अब हम अंदर लेंगे एलसीएम, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों की प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाती होती है। एलसीएम को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड, when you will divide this cos theta sin theta by cos theta, what will be left? Only sin theta. जो बचता है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, sin square theta into sin minus divide this sin theta by the LCM, you will left with cos theta, जो बचा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। ध्यान से चेक करो एलसीएम का स्टेप, इज इट ओके? ठीक हो गया। नेक्स्ट, this is 1 over sin theta minus cos theta and in the numerator sin, ये देखो बेसिस सेम पावर्स ऐड, sin स्क्वायर थीटा जब sin की 1 पावर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, this becomes sin क्यूब थीटा, एंड cos स्क्वायर थीटा जब cos की 1 पावर से मल्टीप्लाई होगा, cos क्यूब थीटा। एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स के रूल्स भी बीच में आते जा रहे हैं, ऐसे नहीं मैंने बोला था एक्सरसाइज थोड़ी डिफिकल्ट होगी। एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रा के रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सब कुछ यूज हो रहा है एक ही चैप्टर में, एक ही एक्सरसाइज। अब देखो जरा, हमें हर बार चीजों को तोड़ना है, तोड़ के ही हम अपनी राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे, क्योंकि अगर हम अपनी राइट हैंड साइड को देखें वहां पे कहीं पे भी पावर नहीं। 1 प्लस सीकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा। प्लीज स्टे ट्यून्ड, इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, देन आई विल फिनिश द लेक्चर, क्योंकि कल फिर दोबारा सारा नींदू करना पड़ेगा। 1 प्लस हमने जो जहां जिस पे पहुंचना है उस पे कोई पावर ही नहीं है, लीनियर टर्म्स है, तो हम इन पावर्स को कैसे करें? खत्म। फिर से वही बात, can we relate some trigonometric some algebraic identity here? Definitely, this is a cube minus, ध्यान से देखो जरा,
कैन बी राइट a क्यूब माइनस b की हुई है 9th में a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती थी a क्यूब माइनस b क्यूब दिस इज a माइनस b this is a this is b a minus b a square plus b square plus ab recall the identity what is a cube minus b cube this is a minus b a square plus b square plus a that I am using ठीक होगी बात so next है this 1 minus this sin theta minus cos theta they get cancelled हो गए so we will be having this is 1 plus sin theta into cos theta over cos theta into sin theta right अब क्या करेंगे ये जो sin theta over cos theta है ये दोनों के नीचे लिख दो cos theta into sin theta plus sin theta cos theta over sin theta cos दोनों के नीचे लिख दिया ये कट गया ये बचा 1 over cos theta sin theta plus 1 what is 1 over cos theta this is secant theta and what is 1 over sin theta this is cosecant theta plus 1 and this is your right hand so कल इसको दोबारा एक बार देख लेंगे एक बार आप अच्छे से लिखना अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो I will discuss it once again so this is end of the lecture for the day okay